प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। और देखिए क्या कंसेप्ट है ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। पीएलसी कहते हैं इसको शॉर्ट में। इट इज रेफर टू एज पीएलसी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। कंसेप्ट समझना, every product has a lifetime. Every product lives for a certain period of time. उसके बाद वह मार्केट से एग्जिट कर जाएगा, वो उस मार्केट में निकल जाएगा वो। अब ये लाइफ कितना छोटा या बड़ा होता है, दैट इज टू बी एनालाइज्ड। और कोई भी मार्केटर चाहेगा कि उसके प्रोडक्ट का लाइफ बहुत लंबा हो सके, लॉन्गेस्ट, ताकि जब तक वो सरवाइव करे, कंट्रीब्यूट करे प्रॉफिट में। सो द एसेंस ऑफ द डिस्कशन इज a product has got a certain period of life. A product enters into the market and it will make an exit. निकल भी जाएगा। एक नया प्रोडक्ट जो मार्केट में आज एंटर किया है, वो आने वाले समय में उसका निकलना इनएविटेबल है, वो निकलेगा ही। अब मार्केटर इन दो पॉइंट के बीच में क्या करेगा कि वो चाहेगा कि उसकी प्रोडक्ट की लॉन्जिविटी बढ़े, लंबे समय तक मार्केट में टिका रहे। इट हैज अ लॉन्गर लाइफ। क्यों? Because as long as the product survives, it will contribute to the profit. और फिर एक समय आएगा जबकि आप नाउम्मीद हो जाएंगे, सेल खत्म हो जाएगा, प्रॉफिट खत्म होने लगेगा, रिकवरी का कोई स्कोप बचेगा नहीं, फिर आप उस प्रोडक्ट को ड्रॉप भी कर देंगे। यू विल allow the product to make an exit from the market. That is called the death of a product. So product has got a lifetime. जब हम लोग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात करते हैं, we are very concerned about the fact that a product has got a lifetime. Product will survive for a certain period of time, right? और यहीं पर concept आएगा आपका product life cycle का. So write a few lines before we proceed further. Write down. A product has a limited life. A product has a limited life. Product की life limited है, right? Product has got a limited life, and during its stay in the market, it will undergo different phases in its lifetime. Different phases in its lifetime which are expressed in terms of the profit, and sales, profit and sales, right? Expressed in terms of profit and sales. Now, आगे लिखिएगा, the marketer are required to develop. The marketers are required to develop appropriate strategies
for each of the stages, for each of the stages, for each of the stages, as they offer different challenges, as they offer different challenges and opportunity for the business, different opportunities and challenges for the business. ठीक है, तो बिजनेस के लिए एक डिफरेंट अपॉर्चुनिटी ऑफर करने वाले हैं, and therefore we have to be very particular about that. Now what to do? ये सारा जो प्रोडक्ट आप देखेंगे ना स्टेज में, चार फेज से गुजरेगा. पहले चेंज करना, लिखना. A product undergoes 4 different stages. A product undergoes 4 different stages. During this stay, a product undergoes 4 different stages. During its stay in the market. During its stay in the market. During its stay in the market. ठीक है, पहला introduction, very important. Second is growth. Third is maturity. And fourth is decline. Right? So there are 4 stages. याद रखिएगा, there are 4 stages in the lifetime of a product. प्रोडक्ट अपने लाइफ टाइम में 4 स्टेज से गुजरेगा. जरा इसको समझ लेना, what you have written. A product has got a certain life, and the product which survives, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट तो पहले ही एंटर करते के साथ ही पिट जाएंगे. A product that survives will undergo different stages in its lifetime. जैसे इंडिविजुअल होता है ना, बचपन, जवानी, फिर बुढ़ापा एंड फिर डेथ. एग्जैक्टली यहाँ भी वही होने वाला है. प्रोडक्ट का भी एक इनिशियल स्टेज होगा, जो कि आपने लिखा है पहला स्टेज, वही चारों स्टेज जो आपने लिखा हुआ है. प्रोडक्ट भी इसी दौर से गुजरेगा. इंट्रोडक्शन स्टेज होगा, फिर आप देखिएगा ग्रोथ स्टेज में पहुंच जाएगा, फिर मैच्योरिटी अटेन कर लेगा, और फिर डिक्लाइन हो जाएगा, और फिर खत्म हो जाएगा. हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं ये सब? बिकॉज एज अ मार्केटर we will be developing a strategy for each of the stages. अपने प्रोडक्ट के पोजीशन को कैसे मजबूत करना है वो हमें पता चलेगा इस डिस्कशन से. How we can consolidate our position. जब आप मार्केट में एंटर कर रहे हैं उस समय क्या करना है, जब आप अपने को एस्टैब्लिश कर चुके हैं तब क्या करना है, जब आपका सेल्स अब बंद हो गया, बहुत ज़्यादा ग्रोथ रहा नहीं, अब क्या करना है, और जब सेल्स बहुत रैपिडली डाउन हो रहा है अब क्या करना है, क्योंकि उसके बाद तो आपको निकलना ही होगा. तो अलग अलग स्टेजेस में एक मार्केटर क्या स्ट्रेटजी डेवलप करे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज बन के सामने आने वाला है. क्योंकि अगर आपने सही तरीके से इन स्टेज को नहीं टेक अप किया तो और प्रोडक्ट विल अटेन इट्स प्रीमैच्योर डेथ, समय से पहले ही मर जाएगा. तो मार्केटर क्या चाहेगा, वो लंबे समय तक मार्केट में सरवाइव करे और प्रॉफिट जनरेट करता रहे.
इसके लिए उसको स्ट्रेटजी डेवलप करना होगा। द मार्केटर विल हैव टू डेवलप द स्ट्रेटजी। आप ये जरा डायग्राम देखिए और बना भी लीजिएगा। द डायग्राम दैट आई एम जस्ट शोकेसिंग इट। draw this diagram in full reality। जो पहला डायग्राम आपको दिखेगा ना, इस डायग्राम को आप बना लीजिएगा। ये डायग्राम जो है सबसे ऊपर वाला जो है, और ये सब बाद में बनाइएगा, लेकिन पहले ये डायग्राम बना लीजिए। और इसको बनाना कैसे है सो देखिए, दो एक्सिस बनाइएगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स पर प्लॉट होगा टाइम, इस डायरेक्शन में टाइम, और वाई एक्सिस के पास होगा सेल्स एंड प्रॉफिट। दोनों एक ही एक्सिस पर दो वेरिएबल को प्लॉट कर रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड सेल्स, यानी सेल्स इन टर्म्स ऑफ रुपीज एंड प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ रुपीज। तो सेल्स और प्रॉफिट उसी एक्सिस पर विथ रेफरेंस टू टाइम हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए क्या हो रहा है, इधर ग्राफ के नेचर को समझना है। यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द नेचर ऑफ द ग्राफ। वो एविडेंट है कि यहाँ पर P का मतलब प्रॉफिट है, S का मतलब सेल्स है। एकदम एक्सिस से शुरू हुआ, जहां पर X एंड Y मिलता है, वहां से आप सेल्स शुरू कीजिए। टाइम इज इक्वल टू 0, सेल्स इज इक्वल टू 0। जहां 0 0 कोऑर्डिनेट है वहां दोनों 0 है, टाइम भी 0। अब टाइम स्टार्ट टिकिंग अवे, टाइम अब बढ़ने लगा, डे हुआ, मंथ हुआ, ईयर हो गया, वॉट एवर। अब जैसे जैसे समय गुजरेगा, यहाँ प्लॉट करेंगे हम लोग, और इधर जैसे जैसे सेल रिस्पॉन्ड करेगा एंड प्रॉफिट। तो यहाँ पर आप देखिए सेल का जो कर्व है ऊपर वाला, वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। सेल बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, राइट। और प्रॉफिट तो शुरू में बिल्कुल नेगेटिव ही है, वो तो एकदम लास्ट स्टेज से कुछ बढ़ा है। तो प्रॉफिट को आप स्टार्ट कीजिएगा नेगेटिव से, और उसको ले जाइएगा एकदम, देखो प्रॉफिट कहाँ पर एकदम नीचे से आ रहा है। प्रॉफिट को हम लोग और नीचे ले आते हैं, देखो प्रॉफिट कहाँ से शुरू हो रहा है, देख रहे हैं। प्रॉफिट एकदम नीचे है, मतलब नेगेटिव प्रॉफिट। मतलब इंट्रोडक्शन स्टेज में, और क्योंकि उसके बाद जो ग्रोथ स्टेज है उसमें प्रॉफिट पॉजिटिव हो, वो तो खैर इंट्रोडक्शन के ही स्टेज में बीच में चला जाएगा, एंटर कर जाएगा। और नेचर ऑफ द कर्व देखो, यहाँ सेल्स कर्व भी बहुत रैपिडली राइज कर रहा है, और ये है आपका ग्रोथ स्टेज, राइट। ग्रोथ स्टेज में आप सेल का हालत देख लो क्या है। तो हम लोग एक साथ रखें तो बेहतर है। हम लोग एक एक करके हर एक स्टेज को पढ़ेंगे, माइंडेड। मैच्योरिटी के साथ देखो क्या सीन चल रहा है यहाँ पे। मैच्योरिटी स्टेज, दिस इज डिक्लाइन स्टेज। ये आपके चार स्टेज में दिख रहे हैं, कैसे चार स्टेज हो गया। यहाँ से यहाँ तक एक स्टेज, यहाँ से यहाँ दूसरा स्टेज, यहाँ तीसरा स्टेज, और लास्ट फोर्थ। तो चार क्वाड्रेंट में बांट दीजिएगा पूरे के पूरे डायग्राम को। और लेट अस फोकस ऑन द फर्स्ट वन, इंट्रोडक्शन। लेट अस फोकस ऑन दिस एस्पेक्ट। ये जो पहला आपको क्वाड्रेंट दिख रहा है उस पर जरा फोकस कीजिए। इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का चार स्टेज हो गया। पहला स्टेज है इंट्रोडक्शन स्टेज। अब इंट्रोडक्शन स्टेज की देखो खासियत क्या है। व्हाट इज द what is this stage is more what is the characteristic feature of this stage? Just go through it. इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं स्टेज ऑफ मार्केट एंट्री। याद रखना, आज हम लोग यही पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन स्टेज, इंट्रोडक्शन स्टेज इज रेफर्ड टू एज स्टेज ऑफ मार्केट एंट्री। ये मार्केट एंट्री का स्टेज है। क्यों?
क्योंकि यहाँ आप मार्केट में एंटर कर रहे हैं, यू आर एंटरिंग इन द मार्केट फॉर द फर्स्ट टाइम। मार्केट इंट्रोडक्शन स्टेज में प्रोडक्ट एंटर्स इनटू द मार्केट, और यहाँ पे सेल्स, ये फीचर्स थोड़ा नोटिस करना, सेल जो है बहुत स्लो होगा, सेल विल बी वेरी स्लो। सेल में जो ग्रोथ है ना वो बहुत ही स्लो होने वाला है, सेल विल बी वेरी स्लो। क्यों? क्योंकि एक तो आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि अभी तो आप टेस्ट कर रहे हैं ना, हम लोग टिकेंगे भी नहीं टिकेंगे, नहीं हो तो अपना वाइंड अप कर लेंगे। और दूसरा है डीलर, डीलर का एक्सेप्टेंस, डीलर भी बहुत विलिंग नहीं है कि कौन सा नया प्रोडक्ट लेकर आप चले आए हैं, बना बनाया मार्केट है मेरा, क्यों रखें हम। तो डीलर आर नॉट वेरी विलिंग टू स्टॉक योर प्रोडक्ट, और इसी के लिए हमको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, उनको ट्रेड मार्जिन देना पड़ेगा अच्छा खासा। एंड कस्टमर्स आर ऑल्सो नॉट वेरी विलिंग टू चेंज, कस्टमर को भी उस चेंज में बहुत इंटरेस्ट नहीं है, वो क्यों रिस्क लेना चाहेंगे, वाई दे विल टेक अ रिस्क। तो सिचुएशन आपके लिए बड़ा एडवर्स है, सिचुएशन जो है बहुत ही कंड्यूसिव नहीं है आपके लिए, राइट। ऑब्वियसली नेगेटिव प्रॉफिट होने वाला है, अनदर इंपॉर्टेंट फीचर। नेगेटिव प्रॉफिट क्या? लॉस। नेगेटिव प्रॉफिट क्या होता है? लॉस। तो यहाँ आप लॉस सहने वाले हैं, राइट। लॉस सहेंगे क्योंकि सेल डाउन है और डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन का कॉस्ट बहुत ज्यादा है। डीएनपी का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन। डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन पर जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा है, तो खर्चा बहुत ज्यादा है, रेवेन्यू आ नहीं रहा है तो लॉस ही होगा, तो लॉस हो रहा है, नेगेटिव प्रॉफिट। एंड प्राइसेस टेंड टू बी हायर एज कॉस्ट आर हाई। तो सिचुएशन आपके लिए बहुत ही फेवरेबल नहीं है। अब इस सिचुएशन में आपको करना क्या है, या स्ट्रैटेजी जो है वो है अपना पांव जमाना होगा, पैर जगह बनानी होगी। वी आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग द फुट होल्ड, और एक बार जब हम लोग का जगह बन जाएगा देन वी विल बी कॉलिंग द शॉट्स, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। So at this point of time we are more concerned about getting the foothold, पैर जगह, अगर हम आप जम जाएंगे तो फिर हम लोग आगे भी निकल जाएंगे, लेकिन यही बहुत सारी कंपनी नहीं जम पाती हैं। It is very difficult to establish yourself because of these factors. People are not aware, they are not willing to change, dealers do not cooperate, और आपका जो प्रोडक्शन साइज है वो भी बहुत छोटा है, तो आपको इकोनॉमी ऑफ स्केल का फायदा भी नहीं मिल रहा है, तो सारी बातें आपके अगेंस्ट में ही है। लेकिन अगर आपको वाकई रहना है, लड़ना है और टिकना है और सक्सेसफुल होना है, तो आप एक स्ट्रैटेजी के तहत इनको आप टेकअप कीजिएगा। जैसे आपको डिसाइड करना होगा व्हेन टू एंटर एज अ पायनियर, पहला आप ही एंटर करेंगे, या जैसे मान लीजिए कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट लेकर आप आइएगा या फिर दूसरे को एंटर करने दीजिएगा, और आप वेट एंड वॉच कीजिएगा। जो कंपनी बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकती है ना, वो इमिटेटर बन जाती है, वो कॉपी करने वाली है, आपके सक्सेस को वो भुलाने वाली है। लेकिन जो सबसे पहले सक्सेस फेस करेगा उसे प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा होगा, चांसेस ये भी हो सकता है कि आप फेल कर जाएं, राइट। फिर ये जो लॉन्च होगा वो नेशनल लॉन्च होगा या रोल ऑन लॉन्च होगा। नेशनल लॉन्च मतलब पूरे टोटल मार्केट पर एक बार लॉन्च कर देते हैं, रिस्क अगेन फिर ज़्यादा हो जाएगा। रोल ऑन में पार्ट वाइज हम लोग लॉन्च करेंगे, पहले छोटे से टेरिटरी में लॉन्च करके देखते हैं, वहाँ से अगर कुछ सीखने को मिलेगा, लर्निंग लेसन्स, फिर हम लोग उसको धीरे 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 करके पूरा मार्केट को कैप्चर करेंगे। एक बार में पूरे मार्केट को नहीं कैप्चर करना है, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट दैट यू डील इन। फिर कंसिस्टेंसी विथ इंटेंडेड प्रोडक्ट पोजिशनिंग, आपने जो पोजीशन डिसाइड किया है कि मुझे क्या जगह ऑक्यूपाई करना है कस्टमर के दिमाग में, उससे बहुत कंसिस्टेंट होना होगा। आपके सारे डिसीजन इसी पोजीशनिंग
के लाइट में लेने पड़ेंगे, राइट। एंड लास्टली डिसाइडिंग ऑन द मार्केटिंग वेरिएबल्स। अगर आपका प्रोडक्ट इनोवेटिव है, इनोवेटिव याद है ना, ओरिजिनल प्रोडक्ट, तो आप डिसाइड कर सकते हैं स्कीमिंग करना है या पेनिट्रेशन करना है। अच्छा याद है ना, प्राइसिंग स्ट्रेटजी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये दोनों जो स्ट्रेटजी आप देख रहे हैं वो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है। स्कीमिंग, लेयर बाय लेयर कवर करेंगे पूरे मार्केट को, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गुड में होता है। इलेक्ट्रॉनिक गुड में यू विल फाइंड द प्रैक्टिस ऑफ स्कीमिंग स्ट्रेटजी। और रैपिड, एक बार में पूरे मार्केट को कैप्चर कर लेना है, जैसे जियो ने किया, एक बार में वह पूरे मार्केट को खा गया, गेटिंग इट, सबको एकदम तहस नहस कर दिया। तो वो हो सकता है एकदम लो प्राइस से एंट्री करके ही, देखा था कैसे जियो ने एकदम फ्री ही देना शुरू कर दिया था। जियो की एंट्री एकदम फ्री थी, जो कि बड़ा अजीब टाइप का था, लेकिन उसका देखो क्या हुआ, पूरा मार्केट वो कैप्चर कर लिया। और उसके बाद बाकी सब रह गए एकदम किनारे पे। और फिर अपने उसे अभी केवल जियो ही है जो प्रॉफिट में है, बाकी सारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जो है वो लॉस में जा रही है, दे आर इन रेड। हालांकि एयरटेल ने अपने लॉस को कवर किया है कुछ, दे हैव एट लीस्ट शोइंग द साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट, लेकिन फिर भी वो लॉस ही में है। और वोडाफोन तो यू नेवर नो वो कितना नीचे गिरेगा, शायद उसको बंद करने की नौबत आ जाएगी। तो विनर कौन? जियो। जियो अभी बहुत कमांडिंग पोजीशन में है और दे आर मेकिंग द मोस्ट ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि वो जो कैप उन्हें जो कन्वर्ट कर दिया। और वैसे भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो जियो का जो टैरिफ है वो कम आएगा आपको एज कंपेयर टू द टैरिफ ऑफ अदर्स। हाँ, 50 रुपये का 50 का डिफरेंस पड़ेगा आपको, नहीं। और वो भी हालांकि एयरटेल वाले आपको कैशबैक भी देते हैं, नहीं, दे माइट ऑफर कैशबैक। तो मेरा जो कर बात वही आती है, लेकिन फिर है सवाल है कि नेटवर्क इशू और क्या क्या। बहुत जगह देखिएगा जो जियो है वो बहुत बेकार सर्विस भी मिलेगा आपको, लेकिन दे हैव मेड अ डेंट। हाँ, ये हम लोगों ने पहले पढ़ा दिया है। वेरी गुड पूजा, यू रिमाइंडेड। सो प्राइसिंग में हम लोग ये साथ डिस्कस कर चुके हैं। और दूसरा जो था जो इमिटेटिव होता है, उसमें आपको ये 4 डिफरेंट ऑप्शन होता है प्राइस सेट करने का। थैंक यू, वेरी गुड पूजा, यू रिमेम्बर। आप या तो प्रीमियम प्राइस सेट कीजिए, लेकिन कब? इमिटेटिव अगर प्रोडक्ट होगा तो, अगर कॉपी है किसी का प्रोडक्ट या ओरिजिनल नहीं है, तो आपके पास ये 4 स्ट्रैटेजी है। या बहुत क्वालिटी, यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं वो है क्वालिटी और प्राइस। इफ यू सेट अ वेरी हाई प्राइस फॉर अ वेरी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, it is premium pricing price strategy. Value, high quality low price, rip off, high price low quality, and economy दोनों ही लो, क्वालिटी भी लो, प्राइस भी लो। तो आपके पास ये 4 + 2 6 ऑप्शन है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका प्रोडक्ट इनोवेटिव है या इमिटेटिव है। इसको हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, हम लोग उसको फिर से बहुत एट लेंथ नहीं डिस्कस करने वाले हैं। So these are the different strategy for introduction stage. जब आप मार्केट में पहली बार उतर रहे हैं, when you are entering into the market for the first time, आपको सोचना होगा कि आपका प्रोडक्ट इमिटेटिव है या इनोवेटिव है। और इसके साथ ही ये भी डिसाइड करना होगा कि when we should enter into the market to tap the most of opportunity, एक बार में पूरे मार्केट को कैप्चर करें कि पार्ट वाइज करें, राइट। और जो भी प्रोडक्ट पोजिशनिंग हमारे दिमाग में है, हम चाहते हैं कि मेरा मार्केट बहुत क्वालिटी वाइज सुपीरियर नहीं होगा, लेकिन अफोर्डेबल होगा। पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ कुड अफोर्ड टू बाई इट। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका पोजिशनिंग क्या है, उस हिसाब से फिर आपको डेवलप करना होगा द एक्शन प्लान। एंड एंट्री के समय डिसाइड करना होगा कि ये हाई प्राइस एंट्री होगा या लो प्राइस एंट्री होगा, और क्वालिटी और प्राइस में क्या रिलेशनशिप होगा। तो सर ये 2-3 साल पहले एक फोन आया था, लॉन्च आया नहीं था, लॉन्च होने का बात हुआ था, फ्रीडम 251, हाँ दो हाँ, सौ इक्यावन रुपए में फोन। राइट 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 सर राइट। उसका उसमें सर काफी पैसा मार्केट से लिया और आज गायब भी है। अब गायब हो गया।
करेक्ट करेक्ट, वो भी एक फ्रॉड ही था। 200 251 में दे रहा था ना। यस सर, फ्रीडम 251 नाम ही था सर उसका। फ्रीडम 251 नाम ही था उसका। कितने लोगों ने सर बुक करा था उसको ऑनलाइन, सही बात है, सही बात। मेड और इन इंडिया फोन बोल के। हाँ, और एंड्रॉइड दे रहा था। यस राइट सर। राइट राइट। क्योंकि आज के डेट में एंड्रॉइड एकदम मस्ट हो गया है, उसके बिना आप तो कोई ना कोई एंड्रॉइड आपके पास होना चाहिए, जो जो भी प्राइस लेवल का हो, लेकिन एंड्रॉइड हो। इसी तरह से एक आया था ये टैब, याद है? वो भी ऐसे ही कुछ काम करके बेचारा साइड हो गया। बहुत सस्ते में एंड्रॉइड ये टैब बेच रहा था, जिसपे ये था कि बहुत लोगों को तो कॉलेज में भी पैसा लिया था कि बच्चे इससे ज्यादा बेहतर पढ़ पाएंगे और क्या क्या, लेकिन बहुत बार सर आपको नहीं। बायजू भी तो वही कर रहा है अभी। बाइजू, हाँ तो बाइजू तो हाँ सर, उसका सर रिव्यू अच्छा नहीं है सर, तो सिर्फ शाहरुख खान प्रचार करता है बस, और कुछ नहीं। ऑब्वियस है, लेकिन बाइजू ने आकाश को खरीदा है, मालूम है ना? सर उसके पास आकाश। पहले से ही बहुत पैसा है। वो हाँ उसका दिल्ली में बहुत बड़ा कोचिंग था सर, मतलब हाँ है अभी भी। हाँ। यूपीएससी का बहुत अच्छा कोचिंग था, चलाता था सर बायजू। बाइजू, नहीं बाइजू ने जिस तरह से आकाश को अक्वायर कर लिया, आकाश बहुत बड़ा प्लेयर था ना मेडिकल हाँ इंजीनियरिंग के सर। अंदर। यस सर। और ये अच्छा सर जब से खासा। ऑनलाइन आया, बायजू के पास बहुत पैसा है ना सर, वो उसका कॉस्टिंग बहुत कम है सर, और काफी हाई प्राइस पे बेचता है, और उसको कुछ लगता तो है नहीं सर, सारा तो रिकॉर्डेड रहता है। सही बात है, सही बात है, सही बात है। वही है बाइजू का जो एक हाइप है। अब वो सवाल है कब तक वो हाइप क्रिएट रहेगा, कब तक अगर वाकई दम होगा तो चलेगा, नहीं तो फिर कस्टमर तो डिसाइड करता है ना। कस्टमर को पसंद आ गया तो अब चलेंगे, नहीं पसंद आएगा तो कोई बजा भी नहीं सकता है। और इसी इसी एग्जांपल में सर एक और आया हुआ था, व्हाइट हेड जूनियर, व्हाइट हैट जूनियर। जो हाँ जो ऐप बनवा रहा था बच्चा सबसे। हाँ हाँ, राइट राइट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो एकदम इनोवेशन, और फिर ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक प्राइस। तो ये सारा स्ट्रेटजी इंट्रोडक्शन स्टेज में, और सबसे प्रोडक्ट फेल करता है इसी स्टेज में। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट फेल इन दिस स्टेज। अगर यहाँ आप संभल गए तो फिर रास्ता आपके लिए आसान हो जाएगा। जब आप जाइएगा ग्रोथ स्टेज में, तो वो टेक ऑफ वाला स्टेज है, वहां से प्लेन उड़ जाएगी ऊपर। अभी आप दौड़ रहे हैं रनवे पर, पूरा जो डिस्टेंस है, अगर आप दौड़ पाइएगा तो आप टेक ऑफ कर जाइएगा, नहीं तो बीच में अटक गए तो फिर आप गए। नहीं, रनवे पर प्लेन दौड़ते दौड़ते अगर मुड़ गया तो गए दूसरे डायरेक्शन, तो फिर टेक ऑफ होगा नहीं, या रुक गया, या टायर फ्लैट हो गया, कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन जब आप एक बार उड़ गए तो फिर बहुत ऊपर तक जाने वाले हैं, और बहुत रैपिड चेंज आने वाला है, प्रॉफिट में, सेल में एकदम एब्रप्ट चेंज आ जाएगा। तो कमिंग क्लास में हम लोग उठाएंगे वही इंट्रोडक्शन स्टेज, और तीनों स्टेज को कवर करेंगे। तो कमिंग क्लास विल बी ऑन द इंट्रोडक्शन स्टेज ऑफ पीएलसी एंड द स्ट्रैटेजी। क्वेश्चन बस इसमें यही आएगा, डिस्कस द डिफरेंट स्टेज ऑफ पीएलसी एंड द रिलेटेड स्ट्रैटेजीज टू ईच ऑफ द स्टेज, या फिर कोई खास स्टेज दे देंगे। डिस्कस द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर द ग्रोथ स्टेज, या मैच्योरिटी स्टेज, या कोई भी स्टेज, बस यहीं पे फोकस कीजिएगा। सो वी विल प्रोसीड विथ दिस इन द कमिंग क्लास। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।